Hello student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we will discuss class 9 moment lesson 1, The Lost Child, written by Malk Raj Anand. Okay, so The Lost Child. It is a story of a small child who get lost in a fair, and he had gone with his parents to the fair but loses them when he get engaged in looking at the roundabout swing. The story highlighted the bond of love and affection that the child shared with his parents, and before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. And once he loses them, he is picked up by a stranger, and the stranger tries to quieten the child by offering him all these things that he had demanded from his parents, but the child doesn't want them anymore. He just want his parents first. Okay, so this is a story about it. Okay, let's start it. It was a festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley amidst a galley clad humanity, some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboos and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. Okay, so it was a season. Okay, it was a season. It was a story which is set in a spring season. Okay, as the winter season had just ended, all the peoples came out of their houses and they were cheerfully as the chilling cold weather had ended. People conveyed through different modes, like some with foot, some with horses, some with bamboo carts, and some are conveyed by bullock carts. And the little child has accompanied by his parents. He ran excitedly and often banged into his father's leg. He was full of life, full of excitement, and full of laughter because he is very excited. He just going somewhere else to see the new things. Okay, then come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. उनके लैग्ड बिहाइंड मीन्स होता है पीछे रह जाना, ठीक है. फैसिनेटेड बाय होता है जिसकी तरफ अट्रैक्टेड होना. लाइन द वे, जो कि पूरे रास्ते में जहाँ तक लगे हुए थे, ठीक है. उनके पेरेंट्स जो थे उस बच्चे के, वो उसको बुला रहे थे कि आओ बच्चा इधर आओ, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा था, जितने भी टॉयज़ उस लाइन में जहाँ से वो जा रहा था उसको दिखाई दे रहे थे, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, अट्रैक्टेड हो रहा था. ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the resided toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he will know the old cold stare of refusal in their eyes. अभी वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत तेज़ चल रहे थे, और उसके जो फिट थे, मतलब उस बच्चे के जो फिट थे वो भी बहुत ज़्यादा ओबीडेंट हो रहे थे इस टाइम पे अपने पेरेंट्स के कॉल के लिए, कि जैसे उसको बुला रहे थे. बट उसकी आइज़ जो थी वो अभी भी लिंगरिंग मीन्स होता है कि पीछे देखते रहना या फिर मन वहीं रहना, ठीक है. और रिसीडिंग टॉय, जितने भी उनके टॉयज़ आ रहे थे उनकी तरफ देख रहा था, मतलब उसका मन नहीं था. जैसे बच्चों में होता है ना कि उन्हें कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो उनके पैर तो चल रहे हैं लेकिन वो पीछे पीछे देखते रहते हैं कि काश ये मेरे पास होता, लाइक दैट. ओके, as he came to where that they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he will know the old cold stare of refusal in their eyes. अभी वहाँ पे जहाँ पे उनको वेट करना होता है, जहाँ पे वो पहुँच गए हैं, जहाँ पे जो टॉयज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वहाँ पे अगर वो रुक गए तो वो अपने डिज़ायर को, अपने दिल में ये इच्छा को, जो डिज़ायर है, जो इच्छा है उसकी, उसको रोक ही नहीं पा रहा है. वो जानता है कि किस तरीके से, जैसे पुराने जैसे चलता आ रहा है, और किस तरीके से उनकी, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए मुझे मना ही करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और वो बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय. और वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कहता है मुझे ये टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं रेड आइज से, गुस्से से. इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे, टेरेंट मीन्स जैसे कि कोई रूलर जैसे अपने प्रजा को देख रहा है, तो रूलर की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं. एंड हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold said look child what is before you. और उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मेल्टेड हो चुकी है, उसको उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब
उसको पता है फ्री स्पिरिट के साथ में वो उसके साथ में जैसा पूरा दिन उसके साथ बिहेव करते हैं, नॉर्मल बिहेव कर रही है, और उसको बोल रही है कि तुम मेरे फिंगर पकड़ो और चलो मेरे साथ, देखो देखो आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस मील्स एंड मील्स ऑफ इवन लैंड। अब यहाँ पे क्या आ गया है, सरसों का खेत आ गया, मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों का खेत आ गया है। और पूरा तरफ चारों तरफ जैसे पेल कलर के जो फूल लहरा रहे हैं येलो कलर के, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ सोना बिखरा हुआ है। एंड स्वेप्ट अक्रॉस मतलब मील्स एंड मील्स तक, इवन पूरी लैंड पे क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारा सोना जैसा लग रहा है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्रस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज और ये जो पर्पल विंग्स जिनके होते हैं, ठीक है, और जो ब्लैक बीज होती हैं और बटरफ्लाइज होती हैं, वो स्वीटनेस लेने के लिए फ्लावर्स पे आ रही हैं, तो पूरा खेत उससे भरा हुआ है। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, वो जो है मतलब पूरे एयर में मतलब उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और अभी उसने देखा कि वो सब जो हवा में उड़ रही थी, वो एक ने क्या हुआ, एक वहाँ पे फूल के पास आके बैठ गई है, तो बच्चे ने उसको ट्राई किया उसको कैच करने की, बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन वो तो चली गई फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, वो उड़ गई और ऊपर उड़ गई एयर में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब उसको हाथ में आई आते ही वो बहुत जल्दी से फ्लटर फ्लपिंग करके उड़ गई। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। तभी उसको जो मदर थी, कॉशनरी कॉल होता है चिंता से, ठीक है, उन्होंने एक मतलब एक केयर होती है, जिस तरीके से टेंशन होती है कि हाँ पीछे रह गया, वैसे ही उसने आवाज़ दी और बोला आओ आओ बच्चा इधर आओ फुटपाथ पे। ही रन टूवर्ड्स हिज पैरेंट गैली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by a little insect and worm along the footpath that were peeping out from their hiding places to enjoy the sunshine। अभी भी वो उसकी तरफ अपने पेरेंट्स की तरफ भाग के गया, और जब वो जा रहा था उसको रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे या वॉर्म्स थे जो फुटपाथ पे थे, ठीक है, जो कि अभी अपने अपने बिल से बाहर निकले हैं एंजॉय करने के लिए, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं, उनकी तरफ भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। ही रन टूवर्ड्स दैम, ओके। तो अभी भी आओ बच्चे आओ इधर आओ, पेरेंट्स ने उनको बुलाया वहाँ पे, जबकि एक ग्रूव जैसा था, एक गुफा जैसा था वहाँ पे उन्होंने शीट में वहाँ पे बैठे थे, एज ऑफ द वेल के वहाँ पे एज पे बैठ के, और उसको बोला जल्दी आओ, और वो वहाँ पे रन करते हुए चला गया। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petal dropping from his forgotten hands. Okay, अभी शावर हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, किस चीज़ का, यंग फ्लावर्स जो थे वो जैसे ग्रुप के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, तो जैसे एंटर हुआ तो छोटे छोटे फ्लावर्स जो थे वो उसके ऊपर गिरने लगे, ठीक है, और वो भूल गया एक बार के लिए अपने पेरेंट्स को कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आया है, तो वो क्या हुआ, ये सारे पेटल्स को इकट्ठा करने लगा अपने हाथ में। बट क्या हुआ, उसी टाइम पे ही हियर द कूइंग ऑफ डव, डव की आवाज़ उसको सुनाई दी, एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट, और अपने जैसे डव की आवाज़ सुनाई दी उसको कू कू करके, तो उसी टाइम पे वो ज़ोर से चिल्लाया, अपने पेरेंट्स के पास गया और बोलता है द डव, देखो देखो यहाँ पे डव है। द रेनिंग पेटल, जो रेनिंग पेटल मतलब ऊपर से जो पेटल्स गिर रहे थे, वो भूल गया और अपने हाथों से उसने उसको नीचे गिरा दिया, और उनको बोला कि देखो देखो यहाँ पे डव है, डव है। देन कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने कहा आओ बच्चा आओ, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। ओके, आओ बच्चा आओ, यहाँ से आओ, यहाँ पे वाइल्ड क्रैपर्स का मीन्स होता है जो होती है ना, बेल टाइप होती है, ठीक है, क्रैपर्स, तो जंगली क्रैपर्स हैं और बनियन ट्री है, ठीक है, यहाँ से होते हुए एक पतली सी गली से होते हुए हमें क्या करना है, फुटपाथ तक पहुँचना है, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या आ जाएगा, इस मस्टर्ड फील्ड के बाद क्या आ जाएगा, हमारा फेयर आ जाएगा, मेला आ जाएगा जहाँ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng
throngs conversing to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो उस पतली गली से उधर से निकला, निकलते ही उसने क्या देखा, उसने देखा एक गांव, ठीक है। उस गांव में फुटपाथ जो कि फुल ऑफ थ्रोन्ग्स, मतलब फुल इतनी सारी चीज़ों का भरा हुआ है, वहाँ पे इतने सारे कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, फेयर जो है वहाँ पे लगा है, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे। एक बार तो उसको क्या हुआ, रिपेल हुआ, वो वहाँ से डर के मारे पीछे की तरफ हो गया, लेकिन उसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, मतलब अट्रैक्टेड भी हुआ, और वो कंफ्यूज भी हो गया कि वो कौन सी दुनिया में एंटर हो गया है, ठीक है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। ओके, स्वीट सेलर जो है, जो मिठाई बेचने वाला है, वो चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ऐसे करके बुला रहा है। कॉर्नर पे, मतलब एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, वो लोग एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1 सेकेंड, ओके। देन देन क्या होता है, वहाँ पे सब लोग इतने ज़्यादा भीड़ में हैं सब लोग। देन डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, पूरा जो उसका जो वो है, वो पूरा सिल्वर और गोल्ड से डेकोरेटेड है, लीव से डेकोरेटेड है पूरा जो मिठाई की दुकान है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, चाइल्ड जो है वो अपनी आंखें खोल के उसकी तरफ घूरने लगा। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसका जो माउथ था वो बर्फ़ी के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मुंह में पानी आ रहा था। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए, उसने धीरे से बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो इस तरीके से बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बट उसके पेरेंट्स जो है वो उसको ये चीज़ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लालची हो रहा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही मूव्ड ऑन, उसने वेट ही नहीं किया आंसर का, और उनके साथ साथ वो आगे चला गया। ये फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फ्लावर सेलर था जो कि बोल रहा था, जो चिल्ला रहा था, बोल रहा था, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, और वो मतलब चाह के भी उसकी तरफ उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा था। ही वेंट टूवर्ड्स अ बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, ठीक है, वो वहाँ पे पहुँच गया उसकी बास्केट के पास में, जहाँ पे आधी माला नीचे लटकी हुई थी और आधी माला उसकी टोकरी के अंदर थी। आई वॉन्ट दैट गार्लन, मुझे ये गार्लन, ये माला चाहिए। बट ही विल नो हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। और उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको ये फ्लावर्स नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फ्लावर मांगेगा तो उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ओछी हरकत होगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उसने कोई वेट नहीं किया आंसर का और वो आगे चला गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक मैन के पास में क्या था, एक पोल था, ठीक है, एक डंडा था जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स लगे थे जो कि हवा में फ्लो कर रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेल्म्ड डिजायर टू पॉजेस देम ऑल। और उस टाइम पे सिंपली वो चाइल्ड जो था वो क्या था, उसको ये लग रहा था जैसे रेनबो ग्लोरी उसके सामने दिख रही है उसको बहुत सारे सिल्कन कलर्स में। तो वो मतलब उसी डिज़ायर में इतना ज़्यादा उसकी इच्छा होने लगी, ओवरवेल्म्ड हो गया वो अपने डिज़ायर से, कि उसको लग रहा था कि ये सारे बलून्स मुझे मिलने चाहिए। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने अपने पेरेंट्स को ये बोला तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि वो अभी बहुत बड़ा हो चुका है, ऐसे खिलौने से उसे नहीं खेलना चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो उसके पीछे पीछे और चलता रहा। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. It had razors in a graceful band like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Okay.
अभी जो एक स्नेक चार्मर था, मतलब जो स्नेक की बीन बजा के उसको डांस करवाता है एंड ऑल, तो ठीक है, फ्लूट बजा रहा था वो स्नेक की, और स्नेक ने अपने आप को कॉइल्ड कर रखा था बास्केट में, और जैसे बीन की आवाज़ आ रही है तो वो उससे अपना हेड को रेज कर रहा है, इतना ग्रेसफुली हेड को रेज कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी स्वैन की क्या हो, नेक हो, ठीक है। एंड जैसे ही म्यूज़िक बज रहा है तो उसके इनविजिबल ईयर्स है, लेकिन फिर भी वो उसमें क्या दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है स्वैन जो है वो इनविजिबल वाटरफॉल में अपनी गर्दन कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब म्यूजिक पे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड जो था वो स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन उसको पता था कि ये स्नेक चार्मर जो है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको ये सुनने ही नहीं देंगे, स्नेक चार्मर क्या बजा रहा है क्या नहीं बजा रहा है, तो इसीलिए वो आगे की तरफ चलता रहा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक राउंड अबाउट था, मतलब पूरा जो स्विंग आता है, पूरा गोल गोल घूमने वाला बड़ा झूला जो आता वो था, उसमें मैन वुमेन चिल्ड्रंस कैरिड अवे इन अ वर्ल्ड रिलिंग मोशन, स्ट्रिंग्ड एंड cried with a dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father and mother. ओके, उस टाइम पे राउंड अबाउट जो था फुल स्विंग पे, उस टाइम पे बहुत सारे मैन एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस थे, उसमें रिलिंग मोशन में वो घूम रहे थे, वो वहाँ पे क्राइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो चाइल्ड उनको देख रहा था, लेकिन देखने के बाद में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने बोल्ड रिक्वेस्ट कर डाली और उसने बोल दिया कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे राउंड अबाउट पे जाना है। ओके, देयर वर वाज नो रिप्लाई, अब उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने पीछे की तरफ देखा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, दे वर नॉट देयर, वो तो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, और सामने देखा, सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, साइडों में देखा, इधर उधर, उसको कहीं वो दिखाई नहीं दे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देर वर नो साइन ऑफ देम, उसको अपने पेरेंट्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, mother father. ओके, पूरा भर गया वो, मतलब उसका जो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ज़ोर से वो रोने लगा, उसकी आंखों से उसकी नाक से इतना पानी आने लगा, ड्राई थ्रॉट के साथ में वो क्या होने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना लगा, स्टार्टिंग ज़ोर से रोने लगा, और इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, कहीं खड़ा हो रहा है, कहीं पे भाग रहा है वो, और उसको सच में अब रियल फेयर के साथ वो डर रहा है, और डर रोते रोते डरते हुए बोल रहा है मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, हॉट एंड फियर्स, एंड हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ज विद द फेयर, उसका फेस जो था, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा सही था, वो अचानक से डर के मारे, आप सोच ही सकते हो जो छोटा बच्चा है वो अचानक से अगर मेले में खो जाता है तो उसको कितना डर लगेगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all direction, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. Okay, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, मम्मी पापा ऐसे करके चिल्ला रहा है। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसका जो टर्बन था, मतलब उसने जो पहना हुआ था येलो कलर का जो स्कार्फ टाइप था, वो जो था वो निकल चुका था, उसके क्लोथ्स जो थे वो उसमें मिट्टी लग चुकी थी। हैविंग रन टू एंड फ्रो, मतलब इधर से उधर भाग रहा है, रन कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। ही स्टूड डिफिटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड विद सो, वो रो रहा है, रोने के बाद में उसकी जो मतलब जितना वो रो रहा है उतना रो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको सुबकियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, एक थोड़े से डिस्टेंस में जहाँ पे हरी घास थी वहाँ पे उसने देखा। हिज फर्म फिल्मी आइज, उसकी आइज जो थी, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, सारे आदमी और औरतें एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ही ट्राइज टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, but there were no sign of his father and mother among these peoples who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने देखा, लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, कोई येलो कलर के पैचेस में उसको दिख जाए तो उसको कोई नहीं दिख रहा था, ना उसके फादर ना मदर, सभी लोगों को वो घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो सब लोग खड़े होकर से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, बस जस्ट हंसने और बातें करने के लिए। ही रन क्विकली अगेन, वो वहाँ से फिर से भागा, दिस टाइम टू अश्विन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब वो वहाँ गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, एक एक स्पेस उसने देखा। हेयर वॉज कॉन्जेस्टिंग विद द मैन एंड बट ही रन थ्रू पीपल्स लैग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर
वो हर इंच से, मतलब जैसे इंच इंच भी स्पेस होता है तो वहाँ से भी वो क्या हो रहा था, भाग रहा था इधर उधर, मतलब जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोगों के पैरों से होके निकल रहा था। और मतलब सुबकियाँ लेते लेते मतलब बोले जा रहा है मम्मी पापा मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के पास पहुँच गया। हावेवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैन जॉस्टल ईच अदर, मैन एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरीज आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मतलब बड़े बड़े आदमी जो कि मर्डरियस आइज, जिनकी आइज़ जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी खूनी कर देंगे, ठीक है। हैफ्टी शोल्डर, बड़े बड़े शोल्डर्स लेके। एंड द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फिट, बट नॉकिंग टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल अंडर फुट। और उस टाइम पे वो बेचारा बच्चा जो था वो स्ट्रगल कर रहा था कि उसको कहीं से इनके पैरों से भी अगर रास्ता मिल जाए तो वो वहाँ चला जाए, लेकिन वो इधर से उधर नॉक कर रहा था, इधर से उधर उसका ब्रूटल मूवमेंट हो रहा था, बट उसको मतलब इधर उधर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, और हो सकता है कि वो अंडर फुट उनके ट्रम्पल हो जाए। Had he not shrieked at the highest pitch of this voice, father, mother, a man is surging crowd hear his cries and stopping with great difficulty lifted him up in his arm। और उस टाइम पे वो जिस तरीके से बोल रहा था मम्मी पापा, एक आदमी था जिसने क्या किया था, पूरे क्राउड में उसने उसकी आवाज़ सुनी थी, उसको बड़ी मुश्किल से उसने उसको रोका, और रोकने के बाद में उसको क्या किया, अपने गोद में लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बेटा। तो फिर उन्होंने बोला हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो उसको इस तरीके से देख रहा था जैसे उसको सब क्लियर है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और क्राइड होकर सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसको चुप कराने के लिए उसको बोला चलो तुम राउंड अबाउट में जाओगे, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम्हें हॉर्स पे राइड करना है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जैसे उसके रिंग के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इनटू अ थाउजेंड स्ट्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। अब इस टाइम पे क्या हुआ, उसका जो गला था वो और भी ज़्यादा, मतलब थाउजेंड श्रिल्स, मतलब इतनी ज़्यादा सोबिंग कर रहा है वो, उस टाइम पे इतना ज़्यादा रो रहा है, शाउट कर रहा है और बोल रहा है नहीं मुझे सिर्फ मेरे मदर और फादर चाहिए, ठीक है। फिर द मैन हेडेड टूवर्ड्स अ प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेइंग ऑन द फ्लूट बाय द स्विंग कोबरा। अब उसको आदमी कहाँ लेके गया, वहाँ पे जहाँ पे स्नेक चार्मर था, ठीक है, वो वहाँ पे बीन बजा रहा था। बोले क्या तुम इसे देखना चाहोगे, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ये म्यूजिक सुनो तुम, उसने रिक्वेस्ट किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रिंग, लेकिन उसने अपने कान जो थे अपने हाथों से बंद कर लिए थे फिंगर से, एंड शाउट करने लगा डबल पिच में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून, बलून के पास लगा। व्हाट यू थिंकिंग अबाउट द ब्राइट कलर ऑफ द बलून, मतलब उसको लगा कि शायद वह बलून के ब्राइट कलर देख के उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। चाइल्ड का अटेंशन लेने के लिए, उसको चुप करवाने के लिए, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर बलून चाहिए। ही परसुएसली आस्क्ड, उसने उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम हिज फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली और सुबकियाँ लेते हुए कहा नहीं मुझे मेरी मम्मा और मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब उसको अभी भी खुश करना चाहते थे, उसको गेट की तरफ लेके गए जहाँ पे फ्लावर सेलर था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम्हें ये इतने सुंदर जो खुशबूदार फ्लावर्स है, क्या इन्हें सूंघना है, स्मेल करना है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें अपने गले में ये माला डालनी है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड हिज सॉब, उसने अपने नोज़ को साइड में कर लिया और बोला मतलब सुबकियाँ लेते हुए बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर मुझे मेरे फादर चाहिए, दैट्स इट। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेंट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, अब उसको लगा कि शायद हो सकता है कि इसको भूख लग रही हो या फिर इसको स्वीट गिफ्ट करता हो तो शायद वो ठीक हो जाए, उसको कुछ अच्छा फील हो, तो उसने कहा तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए बच्चा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और उसने अपना फेस जो था वो दूसरी तरफ कर लिया और सुबकियाँ लेते हुए बोला आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मदर और मेरे फादर चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने देखा है कि किस तरीके से बच्चे जो है उसके अटैचमेंट जो दिखाई दे रहा है अपने बच्चों के लिए, जिस अपने पेरेंट्स के लिए किस तरीके का बॉन्ड वो शेयर करते हैं, कि मतलब जो चीज़ें उसको पहले चाहिए थी अपने फादर मदर से, वही चीज़ें उसको वो बुरी लग रही हैं तब, जबकि उसके मम्मी एंड मॉम एंड
एंड डैड जो हैं वो उसके साथ नहीं है तब, ठीक है। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओके। एंड बस यही बोलूँगी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर फैमिली। थैंक यू सो मच।